Once again, the new ball traveled 5 overs for 44 from mid-start, coming 6 overs for 48. Hazelwood once again very steady, although Hazelwood was also the best bowler in the 399 run effort from Indian indoor. But Maxwell, big plus, always at the game, 6 overs 3 for 26. But 150 to get an 8.33. There's often a lot of talk about dominant score after 30. There's a point of view that with the game getting more and more aggressive, you actually start to double after 32. It worked very well for scores of about 300, 320. The moment the scores went above 320, you couldn't quite double the score after 30. So if you look at a 320 kind of game, you score at 5 and over after 30, 150, 160, double the score, then go at 8 and over after that. Lovely touch for a man who hasn't played a couple of games. Yes, it's a good track, but just the way he bats makes batting look very easy. Loves the full shot. Six of them are the highest six-hitters in modern day cricket, only behind Chris Gayle. Just the touch he looked in and the kind of timing he had. Good signs for India. A couple of batters in today, looking good for 100 and falling short. No, wait. This conversation with the physio, ominous signs there too, doesn't all go well for Australia. Something's happened to him. It didn't look like a friendly conversation or any sort of banter between the two of them. Lucky we're well covered with all-rounders. Marcus Stoinis on the bench. Stanega. No, he did make a difference at the top of the order today, Mitch Marsh. I still think that Stoinis is easier to replace than a Mitch Marsh, who these days is predominantly a batter who bowls a bit. Stoinis hard-hitting finisher who can give you seam hopping. Some days takes a new ball, probably won't need to when Australia are fully staffed. Unless the conversation was just about, look, I got dehydrated today. Can we work on that? Can we work out a system where I remain fresh, don't struggle so much? I don't think it was an injury as much. It's just dehydration, maybe. Yeah, I hope you're right. You don't want to see any player be injured and miss the World Cup. And especially now that he's had such a checkered past with injury, Mitch Marsh, and now starting to find some rhythm in his game at the top of the order. It's a crucial phase this in the game now, because the asking rate evolved very quickly. There's the number of overs that have become lesser and lesser. It's 8.62 now. You really don't want it to go up to 10 and over unless it's down to the last 7-8 overs. So you've got to stay abreast of this asking rate now. It's a good challenge for Sangha. The young man picked up 4 in his first T20 international. He's got a wicket in ODIs as well, not a bad one, 10 over Buma. It's a very good over. 3 off it, 2 or 6 for 3. नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। हिंदी कमेंट्री में 33 ओवर की समाप्ति के बाद भारत की सुरक्षा करते हुए फिलहाल 206 पर पहुंचा है 3 विकेट के नुकसान पर। यकीनी तौर पर परिस्थितियों में नहीं है, सिर्फ गेल मैक्सवेल। मैं हूँ आशीष चरण, कमेंट्री बॉक्स में है अजय में है। अजय, स्वागत है। शुक्रिया आशीष भाई। मिचेल स्टार्क इनकी वापसी हुई है, थोड़े महंगे साबित हुए मिचेल स्टार्क। थोड़ा सा दिशा पे नियंत्रण अभी तक पा नहीं पाए हैं और ये एक मुश्किल रही है। इंजरी से वापस आते हैं, थोड़े से आप रस्टी नजर आते हैं, वही नजर आ रहा है मिचेल स्टार्क के साथ। हालांकि सब जानते हैं इस पर गेंदबाज है। पिछली गेंद पे अगर आप देखें
लगभग 126 किलोमीटर की रफ्तार से डाली हुई, तो ऐसा लग नहीं रहा कि ये पूरे दम से गेंदबाजी कर रहे हैं। और शायद इसलिए लेके आए हैं पैट कमिंस, क्योंकि ये साझेदारी को तोड़ना चाहते हैं। श्रेयस अय्यर एक शुरुआत हो चुकी है पिछले मैच में शतक, इंदौर में कमाल की बल्लेबाजी की थी, तो मैच ही बने थे श्रेयस अय्यर। फिर से करा था कि पैड लाइन पे, अब ये लाइन पे आप गेंदबाजी करेंगे फिर रन निकलते रहेंगे। थोड़ा सा वो मिडल ऑफ लाइन वो ढूंढनी पड़ेगी मिडल स्टार को, और शायद इसलिए लेके आए कि गेंद थोड़ी सी पुरानी हो गई है। फिर से गति की मैं ध्यान दे रहा हूँ आशीष भाई, फिर से 128। जी पहली दो गेंदें अंडर 130 हैं और ये निश्चित रूप से वो मिशेल स्टार्क की गति नहीं है जिसको पूरा विश्व जानता है। कहीं ना कहीं अपने उस प्रदर्शन की परछाई मात्र नजर आ रहे हैं आज के इस मुकाबले में। हालांकि एक लंबे अंतराल के बाद उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी की है। अगली गेंद इस बार लेग स्टंप की तरफ एक्टिव स्ट्रोक के लिए जगह बनाना चाहते थे, बैकफुट पे जाकर कट भी किया लेकिन कैच हासिल नहीं कर पाए। सीधा फील्डर के हाथ में 30-10 के दायरे के अंदर गेंद फील्ड होती हुई दोनों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं। देखिए किस तरह से 2020 में जब राजकोट में मुकाबला हुआ था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और तो 80 रनों की एक शानदार पारी खेली थी, अपरकट को फलाइन का इस्तेमाल करते हुए सीमा रेखा से बाहर पहुंचाया था। और फिलहाल आज के इस मुकाबले में अब तक 18 रन बना चुके हैं। की अगली गेंद इस बार फिर से धीमी गति की गेंद लेकिन लेग स्टंप से बाहर की तरफ। कुमार धर्मसेना और फिर अंपायर इशारा आता हुआ वाइट का। एक और रन अतिरिक्त के रूप में भारत को मिलता हुआ। भारत 209 3 विकेट के नुकसान पर। क्या बिल्कुल, और अपनी दिशा पे वो नियंत्रण नहीं पा रहे अभी तक। मिडिल स्टार्क से 44 रन की दरकार है भारत को 99 गेंदों में। केएल राहुल को हम देख रहे थे 2020 में जो इनिंग्स खेली थी इसी मैदान में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध। इस बार फुल किया और फील्डर टीम में तैनात, बहुत अच्छा एफर्ट, कमाल का एफर्ट था वहां पे, पर वापस आएंगे दूसरे रन के लिए। ग्राउंड फील्डिंग की तारीफ करनी होगी, ग्लेन मैक्सवेल वहां पे मौजूद थे। पहले हमने रणवीर सांगा को देखा था कुछ बेहतरीन स्टॉप्स उनके द्वारा, ये भी एफर्ट देखिए आप, ग्राउंड फील्डिंग शानदार रही है। और लबुशेन का नाम भी आप उसमें जोड़ लीजिए अजय। उन्होंने न केवल आज एक कैच शानदार लगता बल्कि साथ ही साथ जो ग्राउंड फील्डिंग उन्होंने की वो भी बहुत उच्च स्तरीय थी। बिल्कुल, और ये फील्डर्स आमतौर पर आप दिखेंगे टीम में, रणवीर सांगा हो, ग्लेन मैक्सवेल हो या लाबुशेन की आपने बात करी, बिल्कुल जड़ पे ये अच्छी गेंद थी, ये बेहतर गेंद थी जिसके साथ जाना जाते हैं डायरेक्ट हिट, शायद काफी करीबी होता। यही जानते लाबुशेन की बात कर ही रहे थे, वही वहां पे मौजूद थे। इस बार थोड़ा जोखिम लिया था उस रन में। जी देखिए किस तरह से वहां पर गेंद को फील्ड करके एक ही एक्शन से थ्रो किया था। स्टंप्स पर होती तो श्रेयस अय्यर इसी रफ्तार से शायद पवेलियन की तरफ रवाना हो गए होते, लेकिन फिलहाल बीच मैदान पर टिके हैं। तो भारत का स्कोर 212 3 विकेट के नुकसान पर। स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हैं 33 के व्यक्तिगत स्कोर पर श्रेयस अय्यर। 32 गेंदों का सामना करते हुए ये 33 रन अब तक उन्होंने बनाए हैं। स्टंप के नजदीक से हल्के से गेंद को टैप करके ऑफ साइड में रन लेने के लिए आगे निकले थे, लेकिन राहुल देख चुके थे कि लबुशेन वहां पर बहुत तेजी के साथ गेंद पर झपट रही हैं, मना किया रन लेने के लिए और बहुत तेजी के साथ अपने कदमों को वापस खींचा। श्रेयस अय्यर ने भारत के समय अगर मंजिल तक पहुंचना चाहता है तो बची हुई 96 गेंदों में 141 रनों की आवश्यकता है। गेंद और रनों के बीच में जो समीकरण है वो लगातार भारत के लिए थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है अजय। और यहाँ पर न केवल स्ट्राइक रोटेट करनी होगी, सिंगल्स और डबल्स लेने होंगे, बल्कि कुछ बड़े स्ट्रोक लगाने की भी आवश्यकता भारतीय बल्लेबाजों को बहुत जल्द महसूस होगी। ये कहानी इस मुकाबले की, और आश्चर्य वाली बात ये भी है ना, ये भी विडंबना है कि अब अगर आप देखें कमाल की ये सतह पर किसी बल्लेबाज ने शतक नहीं लगाया। टॉप स्कोरर मिचेल मार्श रहे हैं 96 पे, रोहित शर्मा ने 81 बनाए और शतक लगाए स्मिथ के बल्ले से, लाबुशेन के बल्ले से, विराट कोहली के बल्ले से, पर अभी तक शतक लगा नहीं है। पिछले ओवर में वो 6 रन आए थे। रणवीर सांगा 6 ओवर 37 रन, अच्छी गेंदबाजी की है।
क्षमता नजर आती है इस गेंदबाज में, सफलता नहीं मिली है पर एक चुनौती रहती है जब आप भारतीय बल्लेबाजों के विरुद्ध भारतीय कंडीशंस में गेंदबाजी करते हैं। उन बल्लेबाजों को जो स्पिन को अच्छा किया था, यहाँ पे रन मिलेंगे। फिर से अच्छा एफर्ट डीप है, 2 रन और मिलते हुए के राहुल को। हार्डी थे फील्डर, अच्छा प्रयास वहां पर हार्डी का, और निश्चित रूप से कहना होगा कि इस तरह के प्रयास कहीं न कहीं आपकी टीम को हमेशा एक बेहतर स्थिति में रखते हैं। फील्डर को वहां पर 30 गज के दायरे के अंदर बीट करने में कामयाब जरूर रहे थे, लेकिन हार्डी ने बाईं तरफ जाकर जिस तरह से टाइम लगाकर वहां पर रनों को बचाया वो काबिल तारीफ था। सागा की अगली गेंद और हल्के से गेंद को पुश ऑफ साइड में दौड़कर रन लिया। सीधा स्ट्रोल लगाना चाहते थे लबुशेन एक बार फिर से, लेकिन निशाने से चूके और एक और रन भारत के खाते में जुड़ता हुआ भारत 215 3 विकेट के नुकसान पर। थोड़ा जोखिम उठा रहे हैं एक बार फिर वडीले हाथों से, थोड़ा सा आना खेल फिर से एक करीबी हो सकता था। वैसा तालमेल वैसा बैठा नहीं है अब तक श्रेयस और के राहुल का। एक बार बड़ा शॉट खेला है, गेंद बहुत ऊपर गई है और वैसा था नहीं। डेविड वार्नर फील्डर केवल एक रन मिलेगा। अब एक चीज है कि थोड़ा सा वो सोच है कि अब बड़े शॉट खेले जाए, क्योंकि धीरे धीरे जो आस्किंग रेट है, रिक्वायर्ड रन रेट है, वो बढ़ता हुआ। लगभग 93 किलोमीटर की रफ्तार की गेंद थी और आगे की तरफ निकलकर गेंदबाज के सिर के ऊपर से उठा दिया था। बॉटम हैंड का इस्तेमाल करते हुए लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन दोनों ही मौजूद थे और गेंद को वहां पर सीमा रेखा के अंदर ही फील्ड कर लिया गया था, लेकिन तब तक आसानी के साथ 1 रन का इजाफा हो चुका था। अगले गेंद बैकफुट पे जाकर कट किया, क्या गैप हासिल कर पाएंगे? जी हाँ, लेकिन प्रोटेक्शन है पीछे हार्डी के रूप में। सिर्फ 1 रन और, इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर के 217 3 विकेट के नुकसान पर। वेरिएशन देखिए, पिछली गेंद 82 किलोमीटर की रफ्तार के लगभग और उससे 2 गेंद पहले लगभग 93-94 किलोमीटर की रफ्तार। अगली गेंद इस बार खेलने के प्रयास में मोटा किनारा दे बैठे और गेंद थर्डमैन की तरफ जा रही है, कोई फील्डर नहीं, 4 रन जरूर मिल जाएंगे। चौके के साथ स्कोर बढ़कर के भारत का 221 3 विकेट के नुकसान पर। और तनवीर सांघा निश्चित रूप से थोड़ा सा हतोत्साहित, गेंद अच्छी थी, खेलने के प्रयास में बल्ले का मोटा किनारा दे बैठे थे इस अवसर पर श्रेयस अय्यर, लेकिन थर्ड मैन पूरी तरह से अनप्रोटेक्टेड था। गेंद सीमा रेखा से बाहर चली गई थी 4 रनों के लिए। अगली गेंद बैकफुट पर जाकर कट किया, लेकिन बैकफुट पॉइंट पर फील्डर 30 गज के मुहाने पर अच्छी फील्डिंग और रन बनाने की तमाम संभावनाएं भी समाप्त होती हुई। अंतिम गेंद पर कोई रन नहीं। 35 ओवर की समाप्ति के बाद भारत 353 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 221 3 विकेट के नुकसान पर। अच्छी साझेदारी रही है, 50 रन की साझेदारी है। इस प्रकार जो नीली रेखा है प्रयास करेगी करीब आए ऑस्ट्रेलियन रेखा के, और कहीं ना कहीं अगर आप देखें ऑस्ट्रेलिया के लिए वो 39 चौके लगे थे, 8 छक्के। भारत ने अभी तक 14 चौके लगाए, 9 छक्के लगाए, तो अभी 35 ओवर के बाद ही छक्कों के मामलों में भारतीय टीम ज्यादा आगे है। इस समय ऑस्ट्रेलिया का स्कोर था 254 पे 3 और भारत फिलहाल 221 पे 3। ज्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा सा ये है कि अब आने वाले ओवर कुछ अच्छे हों, कुछ बड़े ओवर मिले भारत को, तो निश्चित तौर पे भारत अभी भी इस मुकाबले में बनी हुई है। एक बार फिर मिचेल स्टार्क, इस बार अच्छी गेंद, बड़ा गति मिश्रण कर रहे हैं अब स्टार्क अटल्स का प्रयोग करते हुए। ये थोड़ी पिछड़ी हुई जरूर है, अगर आप देखें देखिए किस तरह से फील्डिंग आज हुई। लबुशेन का वो कैच डाइव करते हुए सांगा ने वहां पर गेंद को सीमा रेखा से बाहर जाने से रोका। हार्डी का ये प्रयास और यही वो कैच देखिए जिस तरह से हाथ में जाकर अटक गया। परीक्षण के लिए तो मानो खुद मैक्सवेल को विश्वास ही नहीं हुआ कि गेंद उनके हाथों में टिकी हुई है। आज अच्छा क्षेत्र रक्षण ऑस्ट्रेलिया टीम का। फिर से स्वीपर कवर पर फील्डर मौजूद है शॉट के रूप में, लेकिन 1 रन जरूर बटोर लेंगे राहुल। 1 रन के साथ उनका व्यक्तिगत स्कोर 26 और भारत डबल लेंसत पर 222 3 विकेट के नुकसान पर। आने वाले बल्लेबाजों की बात करें, सूर्य कुमार यादव, उसके बाद रविंद्र जडेजा 7 नंबर पे, कुलदीप यादव, उनके बाद भी क्षमता है। और ये जो बल्लेबाज है ये मुकाबले का रुख बदल सकता है।
सूर्य कुमार यादव पिछले मैच में एक ही ओवर में 4 छक्के माल की बल्लेबाजी की थी, अच्छा शतक लगाया था सूर्य कुमार यादव ने। इस बार केवल टर्न किया, काफी फाइन खेला है, एक ही रन से संतोष रहना पड़ेगा यहाँ पे। कुछ अच्छे ओवर्स ऑस्ट्रेलिया चाहेगी, थोड़ा बांध के रखें। अगर वो जो प्रेशर है वो बढ़ता जाएगा, फिर बल्लेबाज भी कुछ अलग करने का प्रयास करेगा, ये सोच होगी गेंदबाजों की। रिक्वायर्ड रन रेट धीरे धीरे अब लगभग 9 के करीब पहुंच चुका है। जब आप लक्ष्य का पीछा कर रहे होते हैं तब नंबर 6 पर आकर बल्लेबाजी करना यकीनी तौर पर आसान नहीं होता, क्योंकि दबाव होता है आप पर कि आप अपनी टीम को लक्ष्य तक ले जाएं। और सूर्य यादव उन खिलाड़ियों में से हैं जिनमें ऐसी तमाम क्षमताएं हैं। इस श्रृंखला के दोनों ही मैचों में अर्धशतक लगाए। पहले मैच में उन्होंने शानदार 50 रन बनाए थे और दूसरे मैच में नाबाद रहते हुए 72 रन बनाए, जैसे कि अजय ने कहा। मिशेल स्टार्क की ये गेंद लगभग 128 किलोमीटर की रफ्तार की। आज मिशेल स्टार्क की गेंदों में बहुत ज्यादा रफ्तार देखने को नहीं मिली है, ज्यादातर धीमी गेंदों का सम्मिश्रण कर रहे हैं और अपनी इन धीमी गति की गेंदों से लगातार भ्रमित करने की, चकित करने की कोशिश उनकी हो रही है बैटर्स को। और कुछ हद तक उनको कामयाबी भी जरूर मिली है, लेकिन विकेट लेने का जहां तक प्रश्न है अब तक वो उससे दूर हैं। 7वां ओवर प्रगति पर 52 रन दे चुके हैं, लेकिन सफलता नहीं। अगली गेंद, और इस बार इस गेंद को खेलना चाहते थे ऑन साइड पर, लीडिंग एज है और एलेक्स कैरी कोई गलती नहीं करेंगे। झटका लगता हुआ भारत को। केएल राहुल इस समय 26 के व्यक्तिगत स्कोर पर वापस पवेलियन लौट रहे हैं। और मिशेल स्टार्क, जिनके बारे में हम कह रहे थे कि धीमी गति की गेंदों से कहीं ना कहीं भ्रमित करने, चकित करने की कोशिश कर रहे हैं, इस बार भी ये गेंद धीमी गति की थी और इस गेंद पर लेग स्टंप की तरफ हटकर के स्ट्रोक लगाने की कोशिश की थी। गेंद ने बल्ले का ऊपरी किनारा लिया और एलेक्स कैरी ने वहां पर किसी किस्म की कोई गलती नहीं की। और केएल राहुल वापस जाते हुए 26 रन के 30 गेंदों पे 223 पे 4 भारत। साझेदारी जो बना हुई थी वो टूटती हुई। सूर्य कुमार यादव अंदर आए हैं, श्रेयस अय्यर 39 पे 37 गेंदों का सामना किया। आर अश्विन 5 का मुकाबला नहीं खेल रहे। थोड़ी सी बातचीत हुई है, एक अच्छा कैच था, जल्दी कॉल कर दी थी एलेक्स कैरी ने, क्योंकि गेंद बहुत ऊपर गई थी। केएल राहुल शायद गलत शॉट सिलेक्शन, वो शॉट बनता नहीं था, जल्दबाजी कर बैठे केएल राहुल। और अब सूर्य कुमार यादव के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी। अच्छे टच में नजर आए और उसी फॉर्म को बरकरार रखना चाहेंगे। अंदर आए हैं जो राष्ट्र के लिए खेलते हैं, सब्स्टिट्यूट है मुकाबले के लिए। सूर्य कुमार यादव के चेहरे के हाव भाव देखें तो कहीं ना कहीं लगता है कि पिछले 2 अर्धशतक जो उन्होंने लगाए हैं उससे पूरी तरह से अपने आत्मविश्वास के साथ लबरेज होकर बीच मैदान पर उतरे हैं। देखना है कि क्या यहाँ पर एक बढ़िया पारी खेल करके, एक बढ़िया साझेदारी करके भारत को जीत के लक्ष्य 353 तक पहुंचा पाते हैं या फिर नहीं। ये करियर को आप देखें, 28वीं पारी, 659 रन उन्होंने अब तक बनाए हैं और 28.65 का उनका औसत है, लगभग 105 की स्ट्राइक रेट। और एक दिवसीय मैचों में अभी तक शतक उन्होंने नहीं गढ़ा है। 4 अर्धशतक जरूर उनके नाम के आगे हैं और इन 4 में से 2 अर्धशतक तो इस श्रृंखला में ही आए हैं। तो स्टार को एक विकेट की खुराक मिल चुकी है। सामने है सूर्य कुमार यादव और पहली गेंद पैड्स पर कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को मोड़ दिया बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में। सांगा वहां पर मौजूद हैं, लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। इस 1 रन के साथ भारत का स्कोर बढ़कर के 224, 4 विकेट के नुकसान पर 36 ओवर की समाप्ति। भारतीय बैटिंग कार्ड रोहित शर्मा 81, विराट कोहली 56 61 गेंदों में, श्रेयस अय्यर का बाद 39 पे, केएल राहुल 26। इसलिए बल्लेबाज आउट हुए थे केएल राहुल। सूर्य कुमार यादव अभी 1 पे है, इसके बाद जडेजा, कुलदीप का आना बाकी। तो ये जो जोड़ी है ये बहुत अहम रहने वाली है। पिछले मैच में शानदार बल्लेबाजी की थी दोनों ने, श्रेयस और सूर्य कुमार यादव ने। सांगा आते हुए अपने 8वें ओवर के लिए एक तरफ से कह सकते हैं कि वो दबाव जरूर डाला है कबीर सांगा ने, जैसे गेंदबाजी की है, हल्का सा टर्न मिलता हुआ
सीधे बैट से खेला भी आए हैं, थोड़ी गेंदें देखना चाहेंगे, सतह को पढ़ना चाहेंगे यहाँ पे सूर्य कुमार यादव। जी हाँ, लेकिन बहुत ज्यादा देर तक वो इस पढ़ने लिखने में विश्वास नहीं रखेंगे। बहुत जल्द अपनी हाथ खोलने चाहेंगे, कुछ बड़े स्ट्रोक्स लगाना चाहेंगे। फिलहाल श्रेयस अय्यर तैयार हैं स्ट्राइक के लिए और इस बार ये गेंद फ्रंट फुट पे आके हल्के से पुश किया। लॉन्ग ऑफ की दिशा में फील्डर मौजूद है। 1 रन का इजाफा और भारत के कुल स्कोर में। भारत के बैटर्स को न केवल स्ट्राइक रोटेट करना होगा, और ये देखिए किस तरह से वहां पर केएल राहुल का कैच लपका था। गेंद हवा में लगभग 40 मीटर ऊपर गई थी और अपने बाईं तरफ जाकर लगातार गेंद पर अपनी निगाहों को जमाकर एलेक्स कैरी ने उस कैच को मुकम्मल किया था। अगली गेंद सूर्य यादव के लिए। गेंद को निकालना चाहते थे वहां पर थर्ड मैन की दिशा में, लेकिन 30 गज के दायरे के अंदर फील्डर मौजूद है। रन कोई नहीं मिलेगा। 81 बची हुई गेंदों में 127 रनों की आवश्यकता और भारत के पास 6 विकेट सुरक्षित है। स्टंप के नजदीक से गेंद स्वीप किया। क्या कोई फील्डर वहां पर है? जी नहीं। 4 रन मिल जाएंगे सूर्य कुमार यादव को। सूर्य कुमार यादव के बल्ले से निकलता पहला चौका और भारत का स्कोर 230, 4 विकेट के नुकसान। धीमी गति की गेंद थी जिसका भरपूर लाभ उठाने में कामयाब रहे सूर्य कुमार यादव। ऑफ स्टंप के बाहर थी, लेकिन इस तरह की गेंदों को सीमा रेखा से बाहर पहुंचाने में महारत हासिल है सूर्य कुमार यादव। या बिल्कुल, और लेंथ को बहुत जल्दी आशीष भाई पढ़ लिया था, तभी पोजीशन में आए। 50 रन खर्च कर चुके हैं। वीर सांगा 52, 8वां ओवर चल रहा है उनका। ड्राइव किया सूर्य कुमार ऑस्ट्रेलिया का। जब चोटिल होने के बाद वापसी की है मैक्सवेल ने, लेकिन क्या शानदार क्षेत्र रक्षण किया है और साथ ही साथ तो उम्दा गेंदबाजी भी। हालांकि बल्ला उनका जरूर नहीं चला, लेकिन गेंदबाजी और क्षेत्र रक्षण ने उन्होंने जरूर मोहा है तमाम दर्शकों का। अगली गेंद बैकफुट पे जाकर कट किया। रन लेने के लिए काफी आगे की तरफ निकल आए थे श्रेयस अय्यर, लेकिन कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई वहां पर सूर्य यादव ने और वापस जाने के लिए कहा और तेजी के साथ अपने कदमों को खींचने में। ये देखिए ग्राफ ऑस्ट्रेलिया का ऑरेंज कलर में और भारत का ब्लू कलर में। पिछड़ा हुआ जरूर है भारत, लेकिन भारत के पास तमाम संभावनाएं हैं अभी भी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। रिक्वायर्ड रन रेट 9.31 तक पहुंच गई है। बीच मैदान पर है श्रेयस अय्यर के रूप में पिछले मैच के शतक हुई और साथ ही साथ सूर्य कुमार यादव जो कि 360 डिग्री प्लेयर्स हैं। उनके लिए किसी भी कप्तान के लिए फील्ड सजाना अमूमन खासा मुश्किल होता है। गेंदबाजी में परिवर्तन। हेजलवुड इस समय गेंदबाजी के मोर्चे पर हैं और इस गेंद को वहां पर खेलने का प्रयास किया था। गेंद ने बल्ले का भीतरी किनारा लिया और पैड पर जाकर टकराती हुई पहुंच गई थी बैकवर्ड पॉइंट की तरफ, लेकिन तब तक दौड़कर 1 रन पूरा कर लिए इससे पहले कि गेंद फील्ड हो सके। टाइमिंग्स हासिल नहीं कर पा रहे हैं। स्ट्रोक खेलना लगता है कि थोड़ा सा मुश्किल हो गया। और ये दूसरे वनडे में जो पारी खेली सूर्य कुमार यादव ने 72 नाबाद के 37 गेंदों में एक ही ओवर में वो 3 छक्के लगाए थे। बहुत बड़े प्रोवाइज भी किया था। ये दौर में मुकाबला था जो भारत के नाम रहा और एक अच्छा अरशद है सूर्य कुमार यादव के नाम। भारत चाहे कि लगभग वही दोहराए यहाँ पे, उसी की दरकार भी है। गति में मिश्रण और सीधा हाथ में, यानी कि ये बड़ी विकेट मिलती हुई सूर्य कुमार यादव को वापस जाना होगा। एक रेगुलेशन कैच ग्लेन मैक्सवेल के लिए। हेजलवुड आए और हेजलवुड छाए। जी हाँ, और सूर्य कुमार भी आए और सूर्य कुमार चले भी गए। मात्र 8 रनों का योगदान देकर और सूर्य कुमार यादव की ये विकेट लेने के बाद एक जश्न सा माहौल है इस समय ऑस्ट्रेलिया खेमे में, क्योंकि जानते हैं कि एक बहुत बड़ा सफलता उनके हाथ लगी है। और जैसे ही ये धीमी गति की गेंद थी, ऑफ कटर, थोड़ा सा इसमें उछाल भी था, गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगी और वहां पर किसी किस्म की कोई गलती नहीं की। ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र रक्षक मैक्सवेल ने, जो कि न केवल 3 विकेट झटक चुके हैं अपनी गेंदबाजी पर, बल्कि आज काफी शानदार प्रदर्शन उन्होंने किया क्षेत्र रक्षण में भी। और इस अवसर पर एक बेहतरीन कैच लगाने के साथ ही उन्होंने सूर्य कुमार यादव की पारी को भी समाप्त कर दिया। रविंद्र जडेजा लोकल नायक यहाँ के कहे जा सकते हैं, मैदान के कन कन से वाकिफ हैं और आज उनके बल्ले से एक बड़ी पारी की, एक साझेदारी की आवश्यकता है भारतीय टीम को। भारत को 353 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए, लेकिन
33.2 ओवर की समाप्ति के बाद फिलहाल भारत 233 पर है, 5 विकेट के नुकसान पर। 76 बची हुई गेंदों में 120 रनों की आवश्यकता है। गेंद और रनों के बीच का जो फासला है वो बढ़ता जा रहा है और भारत लगातार निरंतर अंतराल के बाद अपनी विकेटें भी गंवाता जा रहा है। या बिल्कुल, और हेजलवुड अच्छी गेंदबाजी, अच्छी सोच थी, क्योंकि अब गति अभी शुरू किया था। रविंद्र जडेजा की आपने बात की, अब बहुत बड़े खिलाड़ी हैं और इस रीजन से आते हैं, राष्ट्र से आते हैं। 13 शतक इनके नाम अपने एक दूसरे करियर में। अगर औसत देखें तो 32 की, और ये अच्छी औसत है, क्योंकि जिस क्रम पे बल्लेबाजी करते हैं वो क्रम इतना आसान है नहीं। आज भी दबाव में आए रविंद्र जडेजा, इस बार इनको दिशा दी, अपना खाता खोलेंगे सिंगल के तहत। श्रेयस अय्यर सेट है, थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये समय है जब उनको थोड़ा जोखिम उठाना पड़ेगा, पर ये भी देखना पड़ेगा कि इसके बाद कुलदीप का आना बाकी है, और उसके बाद ज्यादा बल्लेबाजी है नहीं। ये थी विकेट सूर्य कुमार यादव की, उठा के खेलना चाहते थे, सीधा पाया मैक्सवेल को, वो एलिवेशन मिली नहीं, वो टाइमिंग सही बैठा नहीं उनका, और मैक्सवेल बहुत खुश। आज फील्ड में ये स्टार रहे हैं, गेंद के साथ और फील्ड में, जैसे इनका फील्डिंग एफर्ट्स नजर आए हैं ग्लेन मैक्सवेल के। वो जो रोहित शर्मा का कॉटन बोल्ट पकड़ा था, उससे तो बहुत आसान कैच था ये। जी हाँ, कैच तो काफी सहज था, इसमें कोई दो राय नहीं। और जो रोहित का कैच लपका था अपनी ही गेंद पर, वो तो मानो गेंद ने उनके हाथ को ही लपक लिया था। गेंद जाकर उनके हाथ में चिपक सी गई थी। पीछे ऑनफील्ड अंपायर थे अनिल चौधरी, किसी तरह से अपने आप को बचाते हुए नजर आए थे, और मन ही मन उन्होंने सांस ली थी कि चलो गेंद लपक ली गई, अन्यथा उनको काफी मुश्किलें हो सकती थी उस गेंद से बचने के लिए। एक बार फिर से तैयार है इस समय हेजलवुड, बैकफुट पे जाकर गेंद को कट किया। क्या फील्डर वहां तक पहुंच पाएगा कि नहीं? लघुशेन का प्रयास नाकाफी साबित हुआ और गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। जडेजा के बल्ले से निकला हुआ पहला चौका, और भारत 239 5 विकेट के नुकसान पर। इस गेंद में खासी रफ्तार थी, 143 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, और उसका भरपूर फायदा उठाते हुए गेंद में न केवल रफ्तार थी बल्कि उछाल भी थी, लेकिन चूंकि गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ थी, मौका तड़ा जडेजा ने और गेंद को सीमा रेखा से बाहर डिस्पैच किया। जरूरत की अगली गेंद स्टंप के नजदीक से, इस बार धीमी गति की गेंद, बल्ले का मुंह खोलते हुए गेंद को दिशा दे दी, थर्ड मैन की तरफ डाइव लगाने की कोशिश, वहां पर सागा के द्वारा नाकाफी साबित होती हुई और गेंद सीमा रेखा से बाहर निकलती हुई। एक और चौका इस ओवर में आता हुआ हेजलवुड के जडेजा के बल्ले से। जडेजा पहुंचे 9 के स्कोर पर, और भारत का स्कोर 243 5 विकेट के नुकसान पर 38 ओवर की समाप्ति के बाद। Jadeja's played behind here, you would think of coming onto the bat. Here again, it's an off-cutter. He gets a bounce every time he's bowling that. Yes, he is, but this is a clever shot. Because we saw where the fielder was. He wasn't looking to hit the ball as hard as he did in the previous delivery, but he's used the pace, and that was about it. A nice touch, just a light cut and then a genuine cut behind point. Let Maxwell back in the attacking spin. The pick of the bowlers, 3 for 26 so far. He's bowled just good, tight, line and length, and the pressure that the scoreboard has helped him bowl nicely. It's actually been amazing, Maxwell. Ravi mentioned his repeatable bowling action, goes quickly through his overs. Stroke. It's not the wrong way. I was waiting for the Australia side to go along through mid-wicket to favour the air of his. This time he gets it where he wants it. And he's hit it a long way. Good footwork, he gets to the line of the ball, pitch of the ball. Beautiful swing of the bat.